in this session on gender insight towards job. National Unity Day or Rashtriya Ekta Divas is celebrated on 31st October every year since 2014 to mark the birth anniversary of Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. This year marks the 144th birth anniversary of the freedom fighter and ace politician. Sardar Patel played a major role in the integration of India, that is Ek Bharat. To acknowledge his efforts in uniting the nation, India celebrates National Unity Day or Rashtriya Ekta Divas on his birth anniversary. Sardar Patel once said, "By common endeavor, we can raise the country to a new greatness, while a lack of unity will expose us to fresh calamities." Topic for today's discussion is gender insights towards job. We have been experiencing biasness in jobs on the basis of an individual's gender. Some jobs are tagged as jobs for women only, while some other jobs are only for male candidates. A research conducted by LinkedIn exhibits that when it comes to investing in diversity, 71% of talent professionals report that achieving gender parity at their company is their top priority. We are pleased that we have Ms. Smriti Rastogi with us this morning to share her expertise on gender insight towards job. Ms. Rastogi is a senior news anchor and producer at Rajya Sabha TV. She has been working with Rajya Sabha TV as a news anchor for last 9 years. She has also worked with ANI and Doordarshan for 3 years. Ms. Rastogi has vast experience in the field of anchoring, production, script writing, and live discussions. She had handled live anchoring and discussions for shows like India's Chandrayaan Mission 2, Black Holes, Iron Man of India Sardar Vallabhbhai Patel, and many others. Ms. Rastogi has also worked as an anchor, voiceover artist, and scriptwriter in Commonwealth Game 2010 for Doordarshan. The list is endless. So without taking much time of our audience, now I would like to request Ms. Rastogi to share her expertise on the topic. Ms. Rastogi. Thank you so much, Dr. Arora, for this very humble introduction of mine. And of course, there is a cause for which we all have been associated today. Nevertheless, forgetting that we are remembering Sardar Vallabhbhai Patel, the late former Home Minister of India, the Iron Man of India. So the day has a lot of significance today. And of course, the topic which we are discussing, the gender insights towards jobs, India specific, and we'll also talk about where India stands on the world chart. So a lot of things we are going to discuss today. Why this day is important for discussing this very topic is because, as the day says, that we are celebrating National Unity Day, celebrating the birth anniversary of the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. And also, I would like to thank Pratima for inviting me to this wonderful discussion. And also not forgetting that Jagran Institute of Management has been very pivotal in organizing this discussion. So as Dr. Arora just mentioned, that without wasting any time, let us come to straight away to the topic and discuss the relevance and significance of the day in addressing this very important topic of gender insights towards jobs and recruitment and everything that goes into the professional life of male and female genders. So as rightly you just mentioned about the studies. So first of all, I would like to share my experience. As a female contender, as a female professional in many places, I found that I actually got equal opportunities to the male counterparts. And working with Rajya Sabha television for the last 9 years has been wonderful. And
not nevertheless, I should mention that it's a government organization, and 9 years is a long period, a long journey. In fact, during this time, I got married also, and the kind of support which I have got from my organization throughout has been wonderful. There are times when, just like my male co-workers, I've been given good and brilliant opportunities, sorry, to cover numerous events, and I believe I kept doing justice to my role, and my performance spoke for me. So that is the reason I kept getting more opportunities. Uh, the kind of limitations and restrictions which we have as females. Now, let me talk about that before really speaking on the topic, is because that I, being a female, I have a lot of responsibilities, professional as well as personal. So there are times when I have to kind of, I will not say compromise, but I have to balance out what I'm required to do to my profession and sometimes to my personal life. So there is a lot of balancing activity going on as a female, and that I believe that as males also, I'm sure there is a lot of balancing activity going on, because this cannot be just a one-sided representation of what actually is taking place. There are times when I've been asked to go abroad to, to cover events, and sometimes out of the state also to cover events. So, which as per my feasibility and convenience, I keep doing, I keep covering. I covered elections, I covered general elections, I covered state elections. So many of the activities which on national and international level happens. I have been a part of the delegation to vice president. He keeps on traveling a lot to address a lot of issues and problems. So I've also been a part of that delegation. So as and when required, and as per my convenience and feasibility, I keep on doing my job and work. But there are times when I have my own limitations, when I think I'm personally required more as compared to my profession. So that is a place where I take my individual solitary decision about if I have to pursue it, be it the kind of opportunity, be it the kind of the job profile, be it the kind of promotion. So I have to think a lot, because I have to have a lot of responsibilities which needs to be addressed. So for that reason, corporate sectors में भी ये होता है. It's a lot of these things happen in corporate sectors also. Late night shift हो गया, या long working hours हो गए, या working on your weekends. So as a female, I feel that a lot of things, a lot of factors, they get into the life professionally if you are a female. So first of all, अगर हम facts की बात करें, so there has been a study which has been conducted by, a very interesting study conducted by Azim Premji University, which is in Karnataka. It found that 96% of the parents, they are saying that education is as important for girls as it is important for the boys. बट जब बात आती है जॉब की या एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन सब कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना लड़कों के लिए इंपॉर्टेंट है उतना लड़कियों के लिए भी इंपॉर्टेंट है. और हम देख भी रहे हैं कि तमाम ऐसे जो कैंपेन्स चले गांव में, देहातों में, तो इस चीज को इम्पोर्टेंस और महत्वता भी दी जा रही है कि लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, उनको उतना एजुकेटेड होना चाहिए. एटलीस्ट दे शुड बी अवेयर ऑफ देयर राइट्स, दे शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग.
they should know how to raise their voice or how to raise their point if anything is going against them or wrong, and what the legal factors of the India says कि ये चीज है right में, ये चीज नहीं है. At least they should be aware of where they stand as the female community of the society. तो एजुकेशन बहुत जरूरी है. पेरेंट्स भी मान रहे हैं, गवर्नमेंट भी, सरकार भी जोर दे रही है. बट अगर हम एम्प्लॉयमेंट और जॉब की बात करें तो 52%, 52% ही पेरेंट्स एजुकेशन को एज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एज अ सोर्स ऑफ जॉब देखते हैं, as compared to sons, which is 71%. Of course, they should go out, they have to have a family, they have to lead the family, they have to be the breadwinner of the family, so they have to go do the job and earn. बट लड़कियों के लिए एजुकेशन पे ज्यादा जोर है, जॉब के लिए इतना ज्यादा नहीं, मतलब 52% ओनली. तो ये एक स्टार्टलिंग एक फैक्ट है जिसके ऊपर काम करना चाहिए. ऑफ कोर्स देखिए, काफी महिलाएं जॉब करना चाहती हैं, काफी नहीं करना चाहिए. एक इंडिविजुअल डिसीजन होना चाहिए जो एक महिला ही डिसाइड कर सकती है कि मैं आगे जॉब करना चाहती हूँ, परसू करना चाहती हूँ, नहीं परसू करना चाहती हूँ. एजुकेशन इतनी स्ट्रांग है, मैं आई कैन बी अ लेक्चरर, आई कैन बी मीडिया प्रोफेशनल, आई कैन बी अ डॉक्टर, आई कैन बी anything what I want, any profession I can choose as per my eligibility and my qualification. But अगर हम एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन की बात करें तो एजुकेटेड है, हो रही हैं हमारी महिलाएं, एजुकेटेड हैं. गांव और मैं देहात तबके की बात कर रही हूँ, मैं शहरों की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि शहरों में ये जो इंडिविजुअल मैं स्टेक की बात कर रही हूँ, इंडिविजुअल से की बात कर रही हूँ, तो उसमें as a female they have their own right to choose कि मैं जॉब करना चाहती हूँ या मैं एम्प्लॉयड रहना चाहती हूँ, मैं एम्प्लॉयड नहीं रहना चाहती हूँ. और अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द जेंडर डाइवर्सिटी, कि एम्प्लॉयमेंट, चलिए ठीक है, आप जा रहे हैं, आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, इंटरव्यूज कंडक्ट हो रहे हैं एंड यू वांट टू टेक अ जॉब, तो वहां पे कैसा सिचुएशन आता है. तो हम उसकी अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो जेंडर डाइवर्सिटी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा पाई गई है तो वहां की ग्रोथ भी अच्छी पाई गई है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि क्यों ग्रोथ अच्छी है, क्यों फाइनेंशियली स्टेबल होती है कंपनी, और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं. अगर हम क्रिएटिविटी या बड़े बड़े चैनल्स की बात करें, या बड़े टॉप कॉलर जॉब्स की बात करें, वाइट कॉलर जॉब्स की बात करें, टॉप मैनेजमेंट की बात करें, so it has been found that as many females are there on board and there is a lot of gender diversity, the exchange of ideas is good, the work culture is very good and positive, at least the addressal जो होता है, grievance redressal system होता है, वो बहुत strong होता है. So a lot of factors, a lot of things are there if the gender diversity is more. I'll give you my example. When I was looking for a change after Doordarshan and ANI, so I went to a lot of private channels also. I went to Aaj Tak, where I got selected. I went to NewsX also, where I got selected, because these are the good channels of our country. I even went to Headlines Today. So, and then I also applied for Rajya Sabha TV. So, and the interesting part of the entire this journey was that I got selected. कहीं किसी चैनल में पहले हो गया, किसी चैनल में बाद हो गया, क्योंकि सरकारी प्रोसेस था, तो राज्यसभा टीवी में थोड़ा सा वक्त लगा, बट वो सबसे लास्ट में हुआ, बिकॉज सरकारी चीजें होती हैं, यू हैव टू अपीयर फॉर रिटन एग्जाम, देन योर इंटरव्यू, देन there is a negotiation, then you are told about how the parliamentary system of India works. तो उसका थोड़ा elaborated process था. बाकी जगह पे प्राइवेट में जल्दी हो गया था comparatively. तो सब जगह अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझसे सवाल ज्यादा मेरी क्वालिफिकेशन पे, मेरे एक्सपीरियंस पे पूछे गए, मेरा स्किल देखा गया, मेरा ऑन स्क्रीन टेस्ट हुआ, मेरा वॉइस का टेस्ट हुआ, मेरा जनरल नॉलेज का टेस्ट हुआ, करंट अफेयर्स का टेस्ट हुआ,
राइटिंग रिटन एग्जाम हुए सब, कहीं मुझे राइटिंग रिटन एग्जाम देने थे, स्क्रिप्ट लिख करके देनी थी, कहीं पे मुझे पार्लियामेंट सिस्टम के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया। तो मोर और लेस इट वाज लाइक द सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेट एवरीवेयर। किसी ने मुझे ये नहीं पूछा कि बस हाँ, एक जगह पे सवाल था, आर यू मैरिड, क्योंकि ये तो क्योंकि अगर आप कोई फॉर्म भी भरेंगे तो ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इसके अलावा मुझसे कोई इतना खास सवाल पूछे नहीं गए। हाँ, एक ऑर्गेनाइजेशन में पूछा गया था कि अच्छा ठीक है, व्हेन आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड। ये उनके अलग कंसर्न्स थे विच आई गॉट टू अंडरस्टैंड लेटर, कि क्योंकि अब इंसान जब शादी करता है तो थोड़ी छुट्टियां लेता है, वो छुट्टियां 15 दिन की, 20 दिन की होती ही होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन वो जो छुट्टियां हैं वो कैसे क्या होता है, सबकी अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, तो उसके तहत पूछा गया। और जो सैलरी ऑफर की गई मुझे, वो मोर और लेस इट वाज सेम इन ऑल द कंपनीज, इन ऑल द चैनल्स वेयर आई अप्लाइड, वो सेम स्ट्रक्चर था सैलरी का। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस व्हेन आई वेंट फॉर द जॉब हंटिंग, और अभी मैं अगर जब मैं फ्रीलांस भी करती हूँ, वॉइस ओवर्स करती हूँ, थिएटर करती हूँ, मैं दिल्ली थिएटर के साथ एसोसिएटेड हूँ, मैं आई आल्सो रिप्रेजेंट इंडिया फॉर द साउथ एशियन प्रेस। तो सेम, इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दी जाती है कि हाँ ठीक है, बीइंग अ फीमेल वुमन एंड शी हैज कम, शी हैज क्लाइंब्ड सो मेनी लैडर, शी हैज कम हियर। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि बायसनेस जो होती है वो कहीं ना कहीं 50% हो सकता हो एक्सटर्नल हो, 50% जरूर इंटरनल होती है। क्योंकि अगर मैं कहीं पे अपीयर नहीं कर रही हूँ, जैसे क्या मैंने क्यों राज्यसभा टीवी चूज किया, ये मेरा अपना डिसीजन था। मुझे लगा कि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि गवर्नमेंट चैनल है तो बहुत ज्यादा मेरे लिए हेक्टिक सिचुएशन नहीं रहेगी, बहुत ज्यादा मुझे चीजों का टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। सरकारी तंत्र है तो कल को अगर मैं शादी करती हूँ या फैमिली प्लानिंग करती हूँ तो मुझे इतनी छुट्टियां मिलेंगी। तो ये एक सेल्फिश मोटिव आता है कि मैं क्यों, ये मेरे डिसीजंस थे, या एज अ फीमेल दैट वाज एंटायरली माय, I take the responsibility of what decisions I have taken. So I think कि अगर मैं प्राइवेट चैनल में ना होकर के गवर्नमेंट चैनल में हूँ, तो that was completely my decision, my solitary take on the situation at that time. I'm very happy about it but the point of the matter is that कि प्रमोशन की बात करें, अगर प्राइवेट चैनल में या प्राइवेट या कॉर्पोरेट सेक्टर में बात करें, तो वहां पे ग्रोथ और प्रमोशन बहुत जल्दी होते हैं कंपैरेटिवली किसी भी सरकारी तंत्र में, विच इज वेरी नेचुरल। तो अगर मैं आज ये सोचूं कि मतलब प्राइवेट में ये ग्लैमर या ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे नहीं है, तो आई कैन नॉट कंपेयर बिकॉज दैट इज व्हाट आई चूज। तो इसी तरीके से जो महिलाएं होती हैं वो अक्सर ये मुझे लगता है चूज करती हैं कि थोड़ा कंफर्ट रहे, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे, क्योंकि प्रेशर भी बहुत होता है। अगर हम काफी फैक्टर्स की बात करें तो जैसे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो महिलाएं अक्सर अपने दिमाग में लेकर के चलती हैं जब जॉब के लिए अप्लाई करती हैं। काफी जगह पे ये होता है कि बच्चों को केयर करनी है, बच्चों का की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक रीजन होता है। फिर वो चाहती हैं कि लेट शिफ्ट ना हो, लेट नाइट शिफ्ट्स ना हो, लॉन्ग वर्किंग आवर्स ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप फैमिली में रहते तो अक्सर पेरेंट्स या जैसे आप व्हेन यू गेट मैरिड तो ये चीज एक बहुत जनरल होता है कि बेटा जल्दी घर आ जाओ, या ठीक है शाम तक हो जाए, 9 से 5 की नौकरी ढूंढो जिसमें ज्यादा प्रेशर ना हो। ये 9 से 5 का कॉन्सेप्ट भी बहुत इनबिल्ट होता है, स्टीरियोटाइप है हमारे दिमाग में कि हाँ मतलब आराम से हम 9 बजे ऑफिस पहुंच जाए या 10 बजे ऑफिस पहुंच जाए और 5 बजे तक हम घर आकर के घर के काम कर लें या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी है हमारी। बट अब हर चीज हमारे मन मुताबिक होती भी तो नहीं है ना। हम नौकरी भी करना चाहते हैं, हम पैसा भी कमाना चाहते हैं, हम आराम भी चाहते हैं। तो ये तमाम चीजें होती है जिनमें आपको एक चीज चूज प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है। तो अक्सर प्रायोरिटाइज क्या कर लेते हैं हम कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, भले ही सैलरी थोड़ी कम मिल जाए या भले ही हमें प्रमोशन इतना जल्दी ना मिले, इतना फ्रीक्वेंट ना मिले, बट हम फ्लेक्सिबिलिटी चूज कर लेते हैं, ज्यादा लंबी शिफ्ट ना हो, वीकेंड्स पे प्रॉपर छुट्टी मिल जाए हमें, हम ये सब चीजें चूज करते हैं। अच्छा, एक और रीजन होता है कि जब हम जॉब अप्लाई करने से पहले या
जॉब के लिए सोचने से पहले जो हम अक्सर सोचते हैं या हमारी फैमिली सोचती हैं हमारे लिए कि इफ यू आर मैरिड तो ये चीज रहती है, अरे आपका हस्बैंड तो कमा रहा है, आप तो इतना 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 प्रेशर क्यों लेना है कि यू हैव टू हैव अ जॉब। बात वहां पे आइडेंटिटी की तो आती नहीं है कि बिकॉज वी आर सो मच इनटू एजुकेशन, वी आर सो मच क्वालिफाइड, वी आर सो मच एलिजिबल, तो हमारी भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, हमें भी एक सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अ सेंस ऑफ स्ट्रेंथ होना चाहिए कि हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं घर के फिनेंसेस में। ये सोच, इस सोच के ऊपर हावी अक्सर ये सोच हो जाती है कि अरे आपका हस्बैंड तो अच्छा कमा रहा है, या बेटा ठीक है जब तक शादी नहीं हो रही तब तक अपने शौक के लिए तुम कर लो जॉब, उसके बाद आप ठीक है देखते हैं क्या इन लॉज कहते हैं क्या रहता है। अब शादी के बाद इन लॉज का प्रेशर है कि भाई ऐसी जॉब ढूंढ लो कि अपने फैमिली को टाइम दो या अपना घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखो, तो ये तमाम चीजें होती हैं। पीयर प्रेशर भी बहुत होता है इन चीजों में कि क्या करना है, ठीक है ऐसा देखो जिसमें तुम्हें आराम हो, फैमिली को आराम हो। इसके अलावा जब ये फैमिली के बाहर चीजें आ जाती हैं कि ठीक है आप वहां से निकल करके आ गए, यू आर इनटू जॉब एंड एवरीथिंग, तो एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जब आपका जो वर्क एटमॉस्फेयर है, जहां आप जॉब करने जा रहे हैं, वो कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क एटमॉस्फेयर इज देयर प्रोवाइडेड बाय योर ऑफिस, योर वर्क प्लेस। तो उसमें अक्सर क्या होता है कि कभी कभी तो बहुत सपोर्टिव होता है, मैक्सिमम टाइम सपोर्टिव होता है, कभी कभी टॉक्सिटी आ जाती है। तो टॉक्सिटी जब आती है ना, तो क्योंकि एवरीबडी हैज एट द बैक ऑफ देयर माइंड्स यार कि हमें ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली भी है, ये भी है, वो भी, ऊपर से हम नौकरी के लिए सुबह आते हैं तो वहां पे ये वर्क कल्चर में ये इशू है या ये टॉक्सिटी है या ऐसे लोग हैं, तो अक्सर कि ठीक है यार छोड़ देते हैं, देखेंगे अभी ब्रेक ले लेते हैं, बिकॉज दैट इज अ लॉट ऑफ प्रेशर। और अक्सर ये टॉक्सिटी जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, इट्स नॉट फ्रॉम द लाइक इट्स देयर, अक्सर ऐसा रहा है कि इट्स मोर फ्रॉम द फीमेल पार्ट ऑफ द सोसाइटी रादर देन द मेल पार्ट ऑफ द वर्क प्लेस, अक्सर ये देखा गया है। सो मैं ये सब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे कैसी सिचुएशन मिली हुई है, मैंने कैसी सिचुएशन देखी है। तो a lot of factors like this goes into making a person more answerable, more how to address the situation. And talking about the female counterpart itself, female जो workforce है उसी की मैं बात करूं तो उसमें ये चीजें काफी आती हैं। I'm sure कुछ सवाल जरूर होंगे, if anybody wants to ask me something here. Yes, sure. We have some students who have some queries. So I have a list of the students who have asked for some questions. Yeah, I So, can, because this will be more interactive if I keep taking questions also in between so that nobody is like out of the rhythm. We have a student, Pragya Shukla from MBA. She has a question. So let's take her question. Pragya, are you there? Pragya Shukla? Actually, because of the limitation of 100 participants, some students could not join this meeting. I can understand. I can understand. Yes, sir. Pragya, are you there? Yes, Pragya. Yes, Please sir. ask. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, Pragya. Ma'am, I want to ask a question that what is the gender diversity in workplace? As I think you have given the answer, but then too I want to ask. So please, ma'am. Sure. Thank you so much, Pragya. So, Thank you, ma'am. जेंडर डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, that what is gender diversity, if going completely by the bookish meaning, what it means is that gender diversity in the workplace means that men and women, महिला और पुरुष सिमिलर और कंसिस्टेंट रेट में एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक कंपनी में हायर हो। अगर 10 महिलाएं हैं तो 10 पुरुष, 10 पुरुष हैं तो 10 महिलाएं। इक्वल सैलरी हो, अगर सीनियर हैं तो मानिए एक की सैलरी 1 लाख रुपए है,
मेल पुरुष में अगर कोई एक सीनियर पोजीशन पे एक मेल है, उसकी सैलरी अगर 1 लाख रुपए, तो महिला की भी इतनी ही सैलरी होगी। ये होती है जेंडर डाइवर्सिटी। अगर कोई एसोसिएट पोजीशन पे है, उसकी सैलरी 60 है पुरुष की, तो महिला की भी 60 होगी। ग्रोथ इक्वल है। अगर इनका वर्क एनालिसिस पुरुषों का, अगर मेल वर्कफोर्स का अगर एनालिसिस करके एक पोजीशन के लिए उनका प्रमोशन हो रहा है, तो वो सेम क्राइटेरिया पे महिलाओं का भी एनालिसिस करके प्रमोशन होगा। वर्किंग अपॉर्चुनिटीज दोनों को सेम मिलेंगी। अगर महिलाओं को ये प्रिविलेज दिया जा रहा है, तो पुरुषों को भी सेम प्रिविलेज दिया जाएगा। अगर पुरुषों को ये प्रिविलेज दिया जाए, तो महिलाओं को भी सेम प्रिविलेज दिया जाएगा। सेम अपॉर्चुनिटीज, सेम टेस्ट, सेम प्रमोशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी होना चाहिए। तो इसे कहते हैं जेंडर डाइवर्सिटी। बट अर्ली एज से प्रज्ञा, ये जो स्टीरियोटाइप्स है ना कि मेल्स को ज्यादा सैलरी होती है, मतलब हस्बैंड की तो ज्यादा होगी, या अगर भाई है भाई की तो ज्यादा होगी क्योंकि भाई आईटी सेक्टर में काम कर रहा है, बहन मैनेजमेंट में है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया क्या है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, इफ यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक और आपके साथ काम कर रहे हैं जो किसी और डिपार्टमेंट में मैनेजर हैं, अगर आपकी सैलरी इक्वल है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप में जेंडर डाइवर्सिटी है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करेंगे किसी आईटी सेक्टर से, और आईटी सेक्टर में किसी और बड़ी पोजीशन पे कोई और है, तो उसमें कंपैरिजन करना फिर तो ये तो मुझे नहीं लगता ये अप्रोप्रिएट होगा। बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ही, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम में ही अगर सैलरी में डिस्पैरिटी नहीं है सेम पोजीशन पे, तो दैट एड्रेसेस द एंटायर इशू। और अगर हम जेंडर डाइवर्सिटी की बात करें, तो जेंडर डाइवर्सिटी से तमाम चीजों का, जैसे मैंने बोला कि जेंडर डाइवर्सिटी होती है जब अलग अलग महिला और पुरुष सेम प्लेटफॉर्म पे, सेम बोर्ड पे काम कर रहे हैं, इक्वल उनका रेशियो है। तो जो 4 सबसे अहम पॉइंट्स जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन करते हैं, तो वो होता है एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, एक होता है कि रॉबस्ट डिसीजन मेकिंग, अलग महिलाएं अलग दिमाग से सोचेंगे, पुरुष अलग माइंडसेट से सोचेंगे, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होते हैं। तो एक कोई बहुत ही मैग्निफिसेंट एक आइडिया बाहर उभर करके आता है। टैलेंट पूल जनरेट होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम, जैसे मैं अपने चैनल की बात करूं, तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे पास काफी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो इंटर्नशिप के बाद हमारे साथ काम करते हैं, इंटर्नशिप के बाद हमारे साथ काम करने लग जाते हैं, इंटर्नशिप के लिए आते हैं और फिर काम में लग जाते हैं हमारे साथ। तो अक्सर क्या होता है, हर साल या हर 2 साल पे हम एक टैलेंट हंट ऑर्गेनाइज करते हैं अपने चैनल में। उस टैलेंट हंट में जो ऑलरेडी हम एंकर्स होते हैं, हम उनको ट्रेन करते हैं, लाइक फॉर 15 days or a month. We work on their pronunciation, we work on their voice modulation, we work on their diction, we work on their presentation in front of the camera, their confidence and everything. We work on everything for them. And towards the end एक particular day choose कर लिया जाता है। उस डे पे हम सबको बुला करके एक टैलेंट हंट के तहत कि हाँ ठीक है 10 people are there, जिनको सब हम लोग मेंटोर करते हैं। एक एक स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं, एक एक बच्चे को हम पकड़ लेते हैं कि हमको दे दिया जाता है कि आप इसको ग्रूम करिए, इसको ग्रूम करिए, इसको ग्रूम करिए। तो वी वर्क ऑन हिंदी, इंग्लिश, बाइलिंगुअल, एवरीथिंग वी वर्क ऑन देम। ग्रूमिंग के बाद उनमें से 2 या 3 बच्चों को चूज कर लिया जाता है एज एन एंकर। फिर उनकी ग्रूमिंग होती है कि चैनल को रिप्रेजेंट करने में धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है। जैसे पहले वीकेंड के शोज दिए जाते हैं ताकि ज्यादा प्रेशर ना आए। फिर धीरे धीरे अब जैसे कि मुझे छुट्टी चाहिए अचानक से और कोई है नहीं, तो उनको बोला जाता है अच्छा ठीक है, स्मृति ने उस ट्रेन किया है, वो अच्छा कर रही है, लड़की अच्छा कर रहा है वो लड़का, उसको बुला लो, उसको बोलो कि ठीक है उसका स्लॉट आज वो कर ले। तो इस तरीके से प्रमोट किया जाता है टैलेंट को। तो ये टैलेंट पूल जनरेट होता है, लड़के भी होते हैं उसमें, लड़कियां भी होती हैं। अब मेरे साथ एक बच्चे ने काम किया था, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा उसका कल्चर को लेकर के, इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था उसका और उसने बहुत जल्दी ग्रोथ की। वो असाइनमेंट पे बैठता था, असाइनमेंट से उसको हम लोगों ने कहा कि यार इसको इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, इसको रिपोर्टिंग पे भेजना चाहिए। वो रिपोर्टिंग करके आया, रिपोर्टिंग में ही प्रेजेंटेड अ मार्वेलस रिपोर्ट। आई वाज सो कन्विंस्ड विद हिज परफॉर्मेंस।
मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इसको अब थोड़ा सा हम ट्रेन करते हैं, देखते हैं ऑन कैमरा और कैसा, पीटीसी तो उसने कर ली, ऑन कैमरा ये और कितना कंफर्टेबल है। फिर पता चला उसका स्पोर्ट्स भी स्ट्रेंथ था, तो हम लोगों ने एक स्पोर्ट्स का शो शुरू करा। हमने कहा कि इसको स्लॉट देते हैं, ही इज टॉल, ही इज वेरी गुड, ही इज कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, लेट अस गिव हिम अ चांस। तो इस तरीके से एक टैलेंट पूल जनरेट होता है किसी भी कंपनी के लिए, एंड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एनी प्लेस टू सक्सीड, टू डू गुड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम हर किसी को एक चांस दें, क्योंकि कोई किसी भी चीज में बहुत अच्छा हो सकता है, जरूरी नहीं कि, क्योंकि एक माइंडसेट होता है जो महिलाएं और पुरुष दोनों ही सोचते हैं, मेल एंड फीमेल वर्कफोर्स अगर वो एक साथ बैठे, सेम बोर्ड पे आए, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज हो, बातें हो, किसी भी प्रॉब्लम को अगर एड्रेस करना हो या कोई नया आइडिया जनरेट करना हो, तो इसीलिए मीटिंग्स होती हैं। बस हाँ, ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, अगर उसमें हम 10 पुरुष को बुला रहे हैं और 3 महिलाओं को बुला रहे हैं तो उससे बात नहीं होगी। अगर हम 10 पुरुषों को बुला रहे हैं, 10 मेल्स को बुला रहे हैं, तो वी हैव टू इंश्योर दैट देयर हैव टू बी 10 फीमेल्स। This what company decides, this what the seniors in a company decide, so that is important, but I assure you, अब अगर किसी भी कंपनी में टॉप मैनेजमेंट महिलाएं ही 3 हैं और पुरुष 6 हैं, तो नथिंग कैन बी डन अबाउट इट, क्योंकि सीनियर्स को ही हम इनवाइट करें उस मीटिंग। इट्स इंपॉर्टेंट दैट अगर 6 पुरुष हैं 3 महिलाएं, तो इक्वली डिवाइड हो वो चीज, रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट इक्वल हो, 3:6 ना हो करके, अगर इक्वल अगर रेशियो हो या ऑलमोस्ट एक कम हो, वो चलता है, कम रेशियो नहीं होना चाहिए दोनों में। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक आई ऑल्सो टेल यू दैट वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जिसने बोला है कि स्टडी इट्स फाउंड दैट एड्स फॉर प्रोफेशनल जॉब्स requiring high level of skills and educational qualification are less likely to specify any preference for any particular gender. हाल फिलहाल में ही अगर हम बात करें तो बहुत ही कम ऐसा होगा कि स्पेसिफाई कहीं किया होगा किसी एड में कि हमें मेल चाहिए या फीमेल चाहिए। हाई क्वालिफिकेशन जॉब्स की अगर हम बात करें, हाई एलिजिबिलिटी की बात करें, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनीज आजकल जागरूक हैं जेंडर डाइवर्सिटी को लेकर के, जेंडर इश्यूज को लेकर के, इसीलिए दे जनरली डोंट स्पेसिफाई और प्रेफर। अगर सेम पोजीशन के लिए 2 कैंडिडेट्स आए हैं फॉर अ सिंगल पोजीशन, मेल एंड फीमेल, इफ दे हैव इक्वल क्वालिफिकेशन, इफ दे हैव इक्वल एलिजिबिलिटी, इफ दे आर दे डोंट हैव एनी इशू, देन देयर इज अ टाई। अब अगर एक स्टेप पे अगर महिला पीछे चली जा रही है कि नहीं, मैं अगर कभी कभी आपके वहाँ वीकेंड्स पे जब ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी काम की या आपकी इवेंट्स ज्यादा हैं, तो मैं वो नहीं आ सकती, even if it is once in a while, even if it is just twice in 3 months, I can't, I just want it to be like this, like I cannot spare my weekends. अब दूसरा, अब जेंडर उसके लिए कह सकता है कि नहीं, आई कैन वर्क इफ इट इज वंस इन अ वाइल, ये करके, लाइक इफ ही इज नॉट रिजिड, इवन इफ ही कांट मेक इट, देन आल्सो ही इज नॉट रिजिड। तो कहीं ना कहीं ये एक प्लस फैक्टर चला जाता है। दो यू आर वेरी क्लियरली हैव सेड कि नहीं, मेरे पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है या क्या है क्या नहीं है, जो भी आपने मेंशन किया, बट द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट इफ यू वांट अ जॉब, you have to be a bit okay with what the situation is, what the requirement is like, क्योंकि वो सिर्फ आपके लिए नहीं बोला जा रहा है कि आपको ही हम ओवर टाइम करेंगे, वो इस पोजीशन की रिक्वायरमेंट है कि शायद कभी कभी in once in a 6 months or once in a while in a year आपको इस इवेंट्स जब ज्यादा आएंगे तो आपको रुकना पड़ सकता है, या आपका फिनेंसेस जब होते हैं, फाइनेंशियल जब पीरियड चल रहा होता है, तब आपको रुकना पड़ सकता है, क्योंकि आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हैं, आप एडमिन में हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में। तो ये एक चीज है जो कि मुझे लगता है इसका ध्यान रखना पड़ता है। और एक और पॉइंट है जिसमें हम बात करते हैं कि यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में,
कि the international community has agreed the right to work as a fundamental human right, and through the agenda of 2030 it has to eliminate gender inequality completely. That is for the companies. If they are doing it, if they are hiring, doing indiscriminate hiring, then they have to be dealt with. अगर सेम पोजीशन पे आपको दोनों जेंडर्स आ रहे हैं एंड यू हैव प्रेफर्ड अ मेल कि अरे नहीं महिलाएं तो बहुत छुट्टियां ले लेंगी, क्योंकि दिस इज अ स्टीरियोटाइप दे हैव कि अरे नहीं उनकी फैमिली रिस्पांसिबिलिटी भी होती है, वो नहीं कर पाएंगी या वो नहीं आ पाएंगी, या वी शुड हैव मोर ऑफ मेल्स बिकॉज दे कैन डू ओवर टाइम ऑल्सो, ओवर शिफ्ट ऑल्सो, दे कैन डू दिस ऑल्सो, वी कैन उनको इस डिपार्टमेंट के अलावा वी कैन गिव देम द वर्क ऑफ अदर डिपार्टमेंट एज वेल, उनको हम ये भी करवा सकते हैं, ये भी करवा सकते हैं. दिस इज फॉर द कंपनी टू थिंक. इफ दे आर थिंकिंग कि हम एक बंदे से 50 काम करवा लेंगे और लेट अस हायर अ मेल, महिलाओं के साथ दिक्कत हो जाएगी कि उनको छुट्टी चाहिए होती है, उनके पर्सनल इश्यूज होते हैं, तबियत खराब हो सकती है, उनकी फैमिली का इशू हो सकता है, तो हम इतनी छुट्टियां नहीं दे पाएंगे. नाउ दिस इज फॉर द कंपनी टू थिंक कि आप किसी को एग्जॉस्ट कराना चाह रहे हो, एक्सप्लॉइट कराना चाह रहे हो किसी उसमें, या आप एक पोजीशन पे एक मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हायर करना चाह रहे हो. So this is very important. This is the thing which needs to be addressed, and this is a thing ये internationally issue है. This is not only for India. This is for the entire world I am talking about. That this is there. This is there. So for the companies कि अगर वो प्रेफरेंसेस अगर ज्यादा दे रहे हैं कि हाँ ठीक है यार इस एक बंदे को हायर करके, क्योंकि कंपनीज होती हैं ऐसा सोचती हैं कि एक बंदे को हायर करके हम उससे 50 काम करवा लेंगे, जो कि महिला मना कर सकती है. वो कह सकती है कि ये तो आप मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं आ सकती वीकेंड पे, मैं नहीं कर सकती, आप मुझे दूसरे डिपार्टमेंट का काम क्यों दे रहे हैं. लाइक इन 1 person salary you want the work to be done of 5 persons. This can't be done. तो उस पे टू नकेल कसने के लिए, टू गेट इट चेक्ड, यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इज constantly and consistently working, and for that reason the agenda of 2030 has been kept this as to achieve gender equality. अगर किसी कंपनी में 10 पुरुष हैं सीनियर टॉप मैनेजमेंट में और 2 महिलाएं हैं, तो इट हैज टू बी एड्रेस्ड. इसके लिए कंपनी से टाइम एंड अगेन उनका एक चार्ट होता है, वो मांगा जाता है, जिसमें देयर आर सो मेनी थिंग्स, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आपके वहाँ कितना वर्कफोर्स है, उस वर्कफोर्स में कितने जेंडर्स को आप सेग्रीगेट करिए. अगर हम वाइट कॉलर पोजीशंस की बात करें तो कितने लोग कौन सी पोजीशन पे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं. इंटरव्यूज कंडक्ट कराइए, आपके एम्प्लॉयज आपसे खुश हैं, महिला भी पुरुष भी. ये पुरुषों के साथ भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल्स ऑल्सो टू गेट देयर प्रॉब्लम एड्रेस्ड. इफ दे आर गेटिंग ओवरवर्क्ड तो उनसे पूछा जाता है आप अपने क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जेंडर इश्यूज में महिलाओं का तो पॉइंट सामने आ जाता है, बट अक्सर पुरुषों का पॉइंट ऑफ व्यू सामने नहीं आ पाता है, क्योंकि उनका एक स्टीरियोटाइप है कि अरे वो तो है ही है, वो तो कर ही लेंगे, उनसे हम 10 लोगों का काम कराएंगे, कर लेंगे, उनको वीकेंड पे बुला लेंगे, आ जाएंगे, हर वीकेंड पे बुलाएंगे. वंस इन अ वाइल कभी कंपनी में इशू आता है, क्योंकि एक लॉयल, अब मेरी ही ऑर्गेनाइजेशन में अचानक से कोई लाइव आ गया, अब प्रधानमंत्री देश को एड्रेस कर रहे हैं, नेशन एड्रेस है, अचानक से वो संडे को ऑर्गेनाइज किया गया, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं प्रोफेशनल हूँ, आई कांट से कि नहीं मैं संडे को काम पे नहीं आ सकती, मेरे तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा है, मेरे तो वीकेंड लिखा है. यू हैव टू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये डेली नहीं हो रहा है, ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है जो क्रिएट खड़ी हो गई है सामने, और आप एक पुरुष मेरे साथ एंकरिंग कर रहे हैं और महिला में मुझे बुलाया गया कि स्मृति आपकी रिक्वायरमेंट है, आप आ जाइए, इस बार आप आ जाइए, अगली बार ऐसी सिचुएशन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन आती है सामने तो हम किसी और को महिला को बोल देंगे आज आप आ जाइए. ये मुझसे कोई जबरदस्ती नहीं करी गई, मुझे कोई ऐसा मेरा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ राइट्स नहीं हो रहा है. मुझे मेरी कंपनी है, एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, मैं जाऊंगी अपनी कंपनी के लिए कि ठीक है मैं आ रही हूँ, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी पूरी टीम खड़ी हुई है वहां पे, तो ये चीज मुझे समझनी पड़ेगी. तो इन चीजों में डिफरेंशिएट करना, हर चीज को एक ही लेंस के थ्रू देखना, ये सही नहीं होगा. दिस वोंट, ये सही नहीं होता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड हर सिचुएशन अलग अलग होती है, हर सिचुएशन को एड्रेस हर तरीके से किया जाता है. अब खांसी की दवाई, खांसी है हमें, तो खांसी में हम लूज मोशन की दवाई तो खा नहीं लेंगे ना, तो हर सिचुएशन अलग अलग है, तो हमें इन चीजों को एड्रेस भी अलग अलग तरीके से करना पड़ेगा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और इसे हम वर्क कल्चर बोलते हैं
या और हो सकता हो अगर मैंने वीकेंड पे काम कर लिया हो तो मुझे उसका नेक्स्ट डे मेरा ऑफिस बोल रहा है कि स्मृति आप छुट्टी ले लीजिए, अगर आप संडे को आई हैं, आप 2 घंटे के लिए संडे को आ गई, आप 3 घंटे का लाइव चला, आप 3 घंटे आ गई, कोई बात नहीं, आप अगले दिन छुट्टी ले लीजिए। मतलब मेरा संडे ऑलमोस्ट मैंने 3 घंटे ही काम किया ट्रैवल वगैरह मिला करके, बट मैं मंडे की भी मुझे छुट्टी कॉम्पनसेट कर रहे हैं। तो कोई ऐसा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ राइट्स कहीं नहीं हो रहा है। और मुझे ये भी समझना पड़ेगा, पूरी टीम आ रही है मेरे साथ, जिसमें अगर 2 महिलाएं आ रही हैं तो 12 पुरुष आ रहे हैं। पीसीआर की टीम होगी, एमसीआर की टीम होगी, स्टूडियो होगा वहां पे, और वहां पे कैमरा पर्सन होंगे, सब होंगे वहां पे। तो ये चीज इक्वल होती है, वी हैव टू बैलेंस इट आउट। इसको बहुत ज्यादा एस्केलेट करने की इन चीजों को जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है हमारी। बट हाँ, अगर टॉप मैनेजमेंट की जैसे मैंने बात की कि हायरिंग कम हो रही है, हायरिंग ज्यादा हो रही है, या इस तरीके की सिचुएशन है, तो वी हैव, दिस इज समथिंग व्हिच हैज टू बी एड्रेस्ड, व्हिच हैज टू बी ब्रॉट टू द फोरफ्रंट दैट दिस प्रॉब्लम इज देयर। तो इसीलिए इंटरनल एनालिसिस होता है कंपनी का, जिसमें हर 6 महीने पे या साल भर में ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है कि अगर किसी महिला को या पुरुष को कोई दिक्कत हो रही है, समस्याएं हो रही हैं, कोई जेंडर स्पेसिफिक इशू हो रहा है, कोई कॉमन इशू है, तो उसको लेकर के सामने फोरफ्रंट पे लाया जाए और उसे एड्रेस किया जाए। तो ये भी काफी ढेर सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। कोई और सवाल हम ले सकते हैं? आई होप ये nobody is getting bored and all, अगर ऐसा हो रहा है तो we can also discuss not anything. exactly. In fact, your discussion is very much thought-provoking, and I think everyone, if he or she is working, faces a similar type of situation in his or her organization. And these students who would be future workforce, they must understand all these specific and small issues that actually happen in the organization. So they should not be rigid, they should be flexible with the organization. At the same time, they must see that the organization is not exploiting them. Exactly. So we have one more question. Two students have asked somewhat similar question. Riya Shukla and Anjali Singh of MBA course. They have asked a similar question. So Riya Shukla, first you take the question, and then Anjali Singh. Both of you ask your questions, and then ma'am would answer. Riya Shukla, are you there? Anjali Singh, MBA student, Yes. are you there? Yes, Anjali, ask your Good morning, question. sir. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, I want to ask a question that how can we change this thought that gender is not more important than our skills and the qualifications? Gender is not More important than qualification and skills. The correct meaning of the other students' question is, Riya Shukla also asked the similar type of question, that how can we change the mindset of people? Because as you have also discussed that there is a mindset in mind, in general people mind, that okay, this job is for girls and this job is for boys, or a girl is not actually one who is actually contributing in financials. The girl is actually supporting or helping. So that mindset is there, that okay, some jobs are for girls, some jobs are for boys, and a girl should not do so much. Can something be done with this social issue? Yeah, this is a stereotype. I just mentioned when I started the session that society has always been a kind of biased, and there is a stereotype which the society in general follows. Ki for females, for women, they should be more into teaching. 9 से 5 wala job, 9 to 5 wala job is like into banks, into teaching, into management and HR. That is the kind of job profiles which are usually the society, the parents, they usually choose for their female child. और जहाँ पर मेल चाइल्ड की बात आती है तो इट कैन बी डेटा साइंसेस एंड इट कैन बी इंजीनियरिंग, IT एंड एनीथिंग ऑफ दैट, लाइक जो उनको व्हाइट कॉलर जॉब लगता है। यहाँ तक कि पत्रकारिता की भी अगर बात की जाए तो ऐसा होता है कि रिपोर्टिंग ज्यादा
men can do, because वो रात में भी कहीं भी travel कर लेंगे, fights ले आएंगे, information collect कर लेंगे. तो ये एक माइंडसेट है, बट इस माइंडसेट को कैसे बदला जाए या बदला जा सकता है, उसमें सबसे अहम भूमिका, जो सबसे पहली जो रोल होता है, वो एक महिला का खुद होता है. शी हैज टू बी प्रिपेयर्ड. अगर वो रिपोर्टिंग कर सकती है, वो करना चाहती है, शी इज पैशनेट अबाउट इट, तो फिर वो क्राइम रिपोर्टिंग क्या, वो सब रिपोर्टिंग कर सकती है. वो पॉलिटिकल क्या, क्राइम क्या, स्पोर्ट्स क्या, एंटरटेनमेंट क्या, एनीथिंग शी कैन डू इफ शी इज पैशनेट. और मैं आपको बताऊं कि पार्लियामेंट में अक्सर मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट सेशंस कवर करने जाती हूँ, तो अक्सर मैंने देखा है कि वहां पे मोर देन मेल रिपोर्टर्स, पुरुष पत्रकार से ज्यादा मैंने वहां पे महिला पत्रकार बहुत देखे हैं. और मैं बहुत सरप्राइज थी कि दूरदर्शन में बहुत सीनियर पोजीशन पे हैं हमारी मैम, उनका थोड़ा नाम स्लिप हो रहा है, गायत्री मैम है. तो वो बहुत पुरानी कैमरा पर्सन है, और वो जो कैमरा दूरदर्शन का है, वो इतना आज के टाइम का इतना कंटेम्प्रेरी कैमरा नहीं है. वो बहुत पुराना स्टाइल का बड़ा सा कैमरा होता है, एंड शी कीप्स इट ऑन हर शोल्डर ऑल द टाइम, बिकॉज वी हैव टू बी रेडी फॉर द बाइट्स. क्योंकि जैसे ही सेशन खत्म होता है, वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव, क्योंकि अंदर से आपके पास रिपोर्ट आ गई, जो भी आपका डिस्कशन हो रहा है उसको आपने रिपोर्ट करके आप फटाफट लिख करके पेपर पे आप अपने अपने ऑफिस में जाके या मोबाइल पे आप टाइप करके अपने ऑफिस को भेज देते हैं, तो वहां पे वो चले. उसके बाद हमें बाइट्स की जरूरत होती है इंडिविजुअल, तो उसमें भागना होता है. तो शी इज पैशनेट अबाउट हर वर्क. शी ऑप्टेड कि सारे पुरुष कैमरा पर्सन है, आई एम द वन. इतना गजब का कॉन्फिडेंस आता है उनको देखकर के, बहुत फील ऑफ प्राइड लगता है. बट दिस इज व्हाट शी चोज फॉर हरसेल्फ, ये उन्होंने चूज किया. तो जब ये स्टीरियोटाइप्स की बात आती है कि अरे महिला पुरुष ही वो हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, या पुरुष ही कैमरा पर्सन हो सकते हैं, पुरुष ही आउटडोर लेकर के जा सकते हैं, एंड शी हैज बीन अवार्डेड सो मेनी टाइम्स. उनको इतना अवार्ड सम्मान, उनको वाजपेयी जी के टाइम पे भी सम्मान दिया गया, उनको अभी कांग्रेस के टाइम पे भी सम्मान दिया गया. उनको टाइम एंड अगेन शी हैज बीन लाइक अपलॉडेड फॉर हर वर्क, शी हैज बीन felicitated for her job and her contribution. So first of all, I think as a mahila, as a female, or as a women gender, you have to be very much clear in your head that what exactly do you want. आपको लगता है नहीं यार ये बहुत मेहनत वाला काम है यार, कौन करेगा ऐसा, तो एक काम करते हैं, हम काम करते हैं, बैक कैमरा काम लेते हैं, हम डेस्क का जॉब ले लेते हैं, डेस्क वर्क लेते हैं. भले आपका पैशन है उस कैमरा हैंडलिंग में, फ्रेम्स में, लाइट्स में, बाइट कलेक्शन में, आपके थॉट और क्रिएटिविटी अलग लेवल की है, बट क्योंकि आपको लग रहा है नहीं अब देखो फैमिली भी करनी है या क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी क्लियर इन योर हेड, दिस इज व्हाट आई बिलीव. उसके बाद बात आती है कंपनी की, क्योंकि अगर आप क्लियर है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीज ऐसी है, नो मैटर व्हाट माय फैमिली, व्हाट द सोसाइटी, व्हाट एवरीथिंग इज सेइंग, आई डोंट बिलीव इन स्टीरियोटाइप्स, आई वांट दिस, मुझे यही ही करना है. फिर बात आती है कंपनी की. कंपनी आपको क्यों आप को एज अ रिपोर्टर या एज अ फीमेल कैमरा पर्सन क्यों नहीं हायर करेगी? बोलिए क्या क्वालिफिकेशन में कमी है मेरी? दैट इज वेयर द कंपनी हैज टू बी पुल्ड अप. तो वहां पे कंपनी हैज टू अंडरस्टैंड, कंपनी को ये समझना पड़ेगा कि विमेन जो वर्कफोर्स है उसको सीनियर पोजीशन, सीनियर रोल्स के लिए सपोर्ट करना ही होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो कंपनी का एनालिसिस जाता है उसमें आप यू कैन नॉट बी बायस्ड, क्योंकि आजकल बहुत राइट्स हैं. फीमेल कैन डेफिनेटली, तमाम आरटीआईज होती हैं, तमाम फोरम्स हैं जहाँ पे इन चीजों को उठाया जा सकता है, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है जहाँ पे ये चीजें होती हैं. तो अ कंपनी हैज टू अंडरस्टैंड कि इफ females are willing to work for such and such position, हमारे पास ज्यादा जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं पोजीशन पे वो महिला है, या महिला भी हमारे पास कैंडिडेट्स आ रहे हैं who are willing to contribute, so we cannot let go कि नहीं वो ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, ये नहीं कर पाएंगी, वो नहीं कर पाएंगे. the company has to understand. और इसीलिए ये जो ग्रीवेंस रहे, ये फोरम्स हैं तमाम तरीके के, पॉलिसीज निकले, इन्हीं वजह से निकले कि कंपनी कहीं पर बायसनेस ना लेके आ पाए. तो ये कंपनी को पुल अप करने के लिए, इनइक्वालिटी का जो सिचुएशन है वो ऐसी ना क्रिएट हो, उसको एड्रेस करने के लिए इस तरीके के फोरम्स क्रिएट किए गए हैं. और यही जो एजेंडा है जो यूनाइटेड नेशंस का है 2030 का,
टू एड्रेस दिस जेंडर इनइक्वालिटी इशू जो ऑर्गेनाइजेशंस में होता है अक्सर। तो इन चीजों को कॉर्पोरेट कल्चर में जो ज्यादा होता है या जो प्राइवेट सेक्टर्स में, तो इन चीजों को एड्रेस करने के लिए ही इस तरीके की चीजें बनी हैं। एक कंपनी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो एक पॉलिसी है कि प्रोसेस है जो जेंडर न्यूट्रल रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है, वो अक्सर अब खैर काफी चेंजेस हुए हैं रिसेंट टाइम्स में, कुछ समय से ये काफी चीजें हुई हैं कि जो मैंने अभी बताया कि वो जेंडर मेंशन नहीं करते हैं। जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि वो मेंशन नहीं करते कि हमें मेल चाहिए या फीमेल चाहिए, वो एक ओपन एड निकालते हैं कि हमें एक कैंडिडेट चाहिए इस पोजीशन के लिए। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये माइंडसेट में चेंज आना बहुत जरूरी है कि हमें जेंडर न्यूट्रल रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और आंसरेबल होना बहुत जरूरी है कि अगर आपने एक पुरुष को इस पोजीशन पे लिया है तो क्यों लिया है। तो ऐसा एक बोर्ड क्रिएट होना बहुत जरूरी है इंटरनल, जो सवाल कर सके, जिसमें फीमेल रिप्रेजेंटेटिव्स या रिप्रेजेंटेशन और मेल रिप्रेजेंटेशन इक्वल, कि सवाल किया जा सके, काउंटर क्वेश्चनिंग करी जा सके। सैलरीज और पेज को लेकर के एक स्टैंडर्डाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं पे डिस्पैरिटी का इशू आ सकता है। अगर सेम पोजीशन पे दो लोग काम करें, एक महिला और एक पुरुष, एक की सैलरी ज्यादा है, एक की सैलरी कम है, सेम पोजीशन पे, दैट इज अ रीजन ऑफ कंसर्न, दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। वो एक इशू की प्रॉब्लम है। जब सेम क्वालिफिकेशन है, सेम पोजीशन है, सेम एलिजिबिलिटी है, तो एक पुरुष की ज्यादा या सैलरी या ज्यादा प्रमोशन या पहला प्रमोशन क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए कंपनी को। तो ये जो स्टीरियोटाइप्स हैं, इनमें ये भी चीज आती है। और अपने वर्कफोर्स को, जो वर्कफोर्स है आपका, या जो रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, उसकी ट्रेनिंग होनी एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत जरूरी है। अब देखिए कि क्योंकि आप जर्नलिज्म की हम बात करें या मैनेजमेंट की बात करें, तो एक ही हम जो पढ़ करके आए हैं उसके साथ हम जॉब्स में गए, हमने वही काम किया, वही काम सीखा, वही काम कर रहे हैं, तो उसमें मोनोटनी बहुत जल्दी आती है रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। आप एक ही काम डेली करे जा रहे हैं, उसमें चलिए आपको कभी प्रमोशन मिल गया, कभी नहीं मिला आपको प्रमोशन, या प्रमोशन का क्राइटेरिया ही नहीं हुआ, 10% आपका हाइक मिल गया आपको साल में एक बार। तो बहुत जरूरी है कि आपको एज अ प्रोफेशनल ट्रेन करे एक ऑर्गेनाइजेशन, रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, मेल और फीमेल। वो ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है कि ये तो आपको आता ही है, आप ये भी टैलेंट, ये भी जो मार्केट में नया जो प्रोसेस है, ये भी है। अगर ऑर्गेनाइजेशन नहीं सिखा रही है, तो एज एन इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ एनी जेंडर, वन शुड डेफिनेटली लर्न। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट जॉब में जाएंगे, दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। जैसे मैं मीडिया की बात करूं, तो जैसे कि अब हमें स्क्रिप्ट राइटिंग आती है, तो हमारा नेक्स्ट क्या होता है कि हमें स्टोरी राइटिंग आए, या हमें फिल्म्स की स्क्रिप्ट राइटिंग आए, वेब सीरीज अब नया एक प्लेटफॉर्म आ गया, OTT प्लेटफॉर्म, तो उसकी स्क्रिप्ट राइटिंग हमें। तो दिस लर्निंग हैज टू बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करे तो दैट इज अ वंडरफुल प्लेस टू वर्क विद, नहीं तो एक इंडिविजुअल को, अगेन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, हैज टू वर्क ऑन हिमसेल्फ। लर्निंग का प्रोसेस कहीं भी, किसी भी जेंडर के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए कभी खत्म नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट फेचेस यू मोर जॉब, मोर अपॉर्चुनिटीज एंड मोर मनी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेवर टू स्टॉप योर लर्निंग प्रोसेस। एक चीज आ गई है, लाइक यू शुड बी इन कॉन्स्टेंट सर्च इफ यू वांट टू मेक अ गुड करियर। क्योंकि अक्सर लोग वर्सेटाइल एक पर्सन को प्रेफर करते हैं, और उसका प्रमोशन भी जल्दी होता है, उसको सैलरी भी उसकी अच्छी होती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज अ पर्सन यू कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। और अक्सर ये क्या होता है, जो हम एक स्टिग्मा की अगर बात करें, स्टीरियोटाइप नहीं, एक स्टिग्मा की बात करें, कि फैमिली प्लानिंग के लिए महिला को ही छुट्टी लेनी पड़ेगी, एक वुमेन ओनली हैज टू कैन टेक लीव्स और has to have maternity concept. It's not it should not only be restricted to females or women. It should not, because males are also playing an equal role in raising a child. Though a male person cannot feed a baby, but still he has the equal responsibility in taking care. तो अगर आप छुट्टियों का पॉलिसी बना रहे हैं, one has to understand that हमें अगर 6 महीने महिला के लिए, बिकॉज शी हैज टू कोप अप विद हर बॉडी, तो 2 महीने पुरुष भी, इफ ही इज लाइक माय वाइफ इज नॉट कीपिंग वेल, तो ये वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ कंपनी कि अच्छा ठीक है, ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है,
तभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, लाइक आई शुड नॉट गो ऑफ बीट, बट एक नया कॉन्सेप्ट आया है दैट वी आर प्रेग्नेंट, आई एम प्रेग्नेंट से हट करके अब हस्बैंड इज लाइक वी आर प्रेग्नेंट. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट मेल्स आर प्लेइंग ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल रोल. तो एक कंपनी को ये भी समझना पड़ेगा कि अगर वो कह रहा है माय वाइफ या वी हैव प्लान्ड बेबी और माय वाइफ इज प्रेग्नेंट, तो समझना पड़ेगा कि उसको भी छुट्टी की जरूरत हो सकती है. तो ये जो मेटर्निटी कॉन्सेप्ट है, इसको रीफॉर्मलाइज और उसको पॉलिसी करना पड़ेगा. और अगर जब कोई भी कंपनी होती है, मैं हमेशा इस चीज पे जोर देती हूँ कि अगर आपके टॉप मैनेजमेंट में जहाँ पे एनालिसिस चल रही है आपके काम की, या इंटरनल आपके हायरिंग की, या रिक्रूटमेंट की, या प्रमोशन की, एनीथिंग, there has to have a board which should have equal representation of males and females. 5 महिला तो 5 पुरुष, 5 पुरुष तो 5 महिला, so that there can be equal and appropriate exchange of ideas and unbiased decisions come out of it उस बोर्ड से. तो that is very important. और अब किसी भी ऑफिस में the top management should definitely take care of this process कि इंटरनल रिड्रेसल का जो कंप्लेंट्स का एक मैकेनिज्म होना चाहिए, उसको एनालाइज करने के लिए भी. अब तो खैर दिस इज वेरी कॉमन, हमने इतनी फिल्में देख ली हैं, इतना ये कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा आम हो गया है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नाम का, कि अगर किसी को भी कोई जेंडर बेस्ड कोई इशू हो रहा है, irrespective of gender, it can be male also, males also and females also. ये जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी का कॉन्सेप्ट है, ये कोई एलिगेशन के तहत कहीं कोई महिला या पुरुष फंस तो नहीं रहा है या कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, उसके लिए दोनों जेंडर्स के लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म या कमिटी होनी चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर एक वर्क कल्चर इक्वल, डिसिप्लिन्ड, प्रोग्रेसिव चाहिए, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. merit, I keep on emphasizing on merit is very important for any position, any role, any designation, any promotional activity. Merit is important. ये मैं कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ, कंपनी को क्या करना चाहिए. हम लोगों को जो करना है हम बता दिया मैंने पहले ही. और जो वॉइसेस हैं, डिफरेंट वॉइसेस, उनको प्रमोट करना बहुत जरूरी है. वो जो कि मैंने बताया कि एक बोर्ड ऐसा जनरेट करना चाहिए जिसमें इक्वल जेंडर और इक्वल वॉइसेस और रेसेस दे आर हर्ड, क्योंकि वो एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं. 1 single person can be biased, 2 people can be biased, 3 people can be biased, 5 women cannot be biased और 5 males cannot be biased. तो एक जनरल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, और कोई भी चीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसको डिस्कस करना बहुत जरूरी है. I hope I was able to answer this question well. Yes, surely you have answered the question. And in fact, when I go through the list of questions, almost all of the questions have been answered during all this discussion. And we are also running out of time. So now I would like to thank Ms. Rastogi for this thought-provoking session. It was an excellent session. And she has actually talked about many issues that are social as well as organizational. So it was a wonderful session, and we have learned that if it is about gender biasness, it is not only about towards female employees in the organization, it can also be towards male employees in the organization. And when we talk about gender equality, then it should be taken care of both the employees, male as well as female. She has very well said that an organization that has gender diversity has higher probability to grow. So those studies have been shown that gender diversity is good for organization. We are very much thankful to Ms. Rastogi for sharing her expertise on this topic. Actually, we believe that most of our students must have learned a lot of things that are related to management or related to their future career. They must understand that if there is a need in the organization to work some extra time, they must be, as an employee, they must take care of the organization.
And the most important key takeaway for this session that I feel is it is the women that needs to start this change, need to challenge this stereotype that this job is for males only, or this job is for females only, or I will do only this type of job. These are some specific that jobs that I would apply for, I would opt for. They should challenge all the stereotypes. Only then it would be possible to eliminate gender inequality from system or corporate. So thanks a lot, Mr. Rastogi. It has been a great pleasure listening to you. We would invite you when the things get all normal. We would be very much happy to invite you in our campus, and again having some more interaction with you. Thank you. Thank you so much, Dr. Arora. And this has indeed been a very insightful discussion for me as well. And thank you so much. I'll be really happy and overwhelmed if I get to visit the campus someday. Thank you so much. Thank you so much, everyone. We would like to present a small memento with you. This has been shared. So thank you so much. please accept this. Thank you so much. Pleasure.